Everyone, welcome back to you all. I am back again in front of you all. Okay, students, almost students will know about will be known about the syllabus for 10th or plus 2 standard. But anyway, I just want to draw a light on the deleted topics of plus 2 standard. But before starting my topic today, I am just giving you instructions for the deleted topics which has been reduced from the syllabus of plus 2 English by CBSE board. So here it is. In your first there will be two questions. As usual, there comes two questions. In your first question related to unseen passages and second question that is related to summarizing. For your kind information, which is the second question, and in coming time or in your future exam for board exam CBSE, which will be your second question, now that has been deleted. The second question, that is note making, and some note be included in coming exam of plus 2 standard for English. Next, now I come to the point of literature. In literature, your book Flamingo. In Flamingo, there are 3 lessons which has been reduced or deleted from your topics. Flamingo book, that is the 6th lesson, Poet and Pancakes, 7th lesson, the interview, and 8th lesson, Going Places. All these 3 lessons, the last lesson of Flamingo, will not be included in your syllabus and according to your final exam. Clear? And now, Vistas book. Here it is, the Vistas book. According to Vistas book, there are also 3 lessons which will not be included as usual as Flamingo. That is the 2nd lesson of your book Vistas, the Tiger King. 3rd lesson, Journey to the End of the Earth, and the last lesson of Vistas, Memories of Childhood. It was the discussion on the literature and your first question, reading skill. This is the textual work, and now I am going to discuss about your writing skill. Some of the writing skill topics are also deleted from your syllabus by CBSE, that is postal making, business or official letters, including about inquiries, complaints, and another one asking for giving in orders, sending replies. So for your kind information, students, all the syllabus which I have recently discussed with you all, that will not be included in your syllabus in your coming exam, and this decision has been taken by the Honorable or Reverend Board CBSE. So now, after a few moments, I am going to start today's Vistas lesson. That is the lesson of, we have completed 4 lessons from Vistas also. Today I am going to discuss about the 5th lesson. Thank you. Hello everyone, I am back again. Namaskar, Abhinandan, Swagat, welcome to you all again on this YouTube channel of Vistas School. अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको कुछ एक कैप्शन के रूप में, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के रूप में जो लेटेस्ट में एक रिड्यूस हुआ है सिलेबस फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन का गाइस द पीपल, उसकी वीडियो आपको पहले मिलेगी. अभी जो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन द 5th लेसन ऑफ विस्टास, क्योंकि अभी जो मैंने सिलेबस आपको बताया बच्चे, उसमें जो आपका फ्लेमिंगो का 6th, 7th और 8th लेसन है, that has been reduced, that has been deleted from the topics of फ्लेमिंगो. 6th लेसन है आपका Poet and Pancakes, 7th लेसन है आपका द इंटरव्यू, और 8th लेसन है Going Places. सो वो बुक आपकी 5 लेसन्स तक कंप्लीट है. आज मैं आपके सामने विस्टास 5th डे आपका है प्लस 2 स्टैंडर्ड का, जो 5th लेसन है शुड रिजॉर्ट हिट मॉमी जोन ऑफ डाइक. ये कहानी जो है, एक फादर, अक्सर पुराने जमाने के अंदर भी अक्सर ऐसे ही होता था, आज भी शायद है, बट उसकी जगह जो है रिप्लेस कर दिया गया मोबाइल्स को. टीवी ऑन हो जाता है, मोबाइल हो जाता है. जो माँ है वो अपने बच्चे को लोरी खुद नहीं सुनाती, दादी माँ नहीं सुनाती, तो मोबाइल सुनाते हैं. तो ऐसे ही फादर है
इस स्टोरी के अंदर मैंने स्टोरी मैप तैयार किया है फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन. इट बिकम्स दैट इज टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. फर्स्ट वन, मेन कैरेक्टर्स. जैक द फादर, जो his 4-year daughter, Jack's wife, Roger Skunk, main characters of the story that Jack tells his story, Roger Skunk's mother and Wizard, and Joe had also a younger brother. Now background, Jack tells his little daughter a story every Saturday to make her sleep. The theme of this lesson is the chapter deals with opinions of children and how the worldview of adults and children differ as per their experiences. इसमें जो कहानी है क्या है कि जो जैक है वो अपनी बेटी जो को जब वो when she was at the age of 2 years old, she started to tell a story so that she can sleep well. Now she has grown up and started to put up a question related to the story. तो नेचुरल सी बात है, जब बच्चा छोटा होता है वो इनोसेंट होता है, जैसे आप उसको कहें वो मान जाता है. तो जैसे ही जैक जो को मनगढ़ंत कहानियां सुनाता है, एंड दिस स्टोरी विच इज रिलेटेड टू रोजर. रोजर वाज एन नॉर्थ अमेरिकन एनिमल स्प्रेड अ स्टिंकी स्मेल बिहाइंड इट. एक गंदी सी स्मेल छोड़ता है. तो वो आउट ऑफ हिज हेड, जो जैक है जो का फादर, आउट ऑफ हिज हेड एक स्टोरी सुनाता है जिसमें क्या होता है कि रोजर स्कंक, उसकी शॉर्ट में बताना चाहूंगा, रोजर स्कंक जो है स्टिंकी स्मेल फेंकता है, पीछे से गंदी स्मेल फेंकता है, इसलिए कोई भी उसे पसंद नहीं करता. नोबडी लाइक्स टू कम नियर रोजर स्कंक और बीइंग अ फ्रेंड ऑफ रोजर स्कंक. तो वो परेशान हो जाता है इस चीज से. और आपको पता होना चाहिए बच्चे, आप जिस हाल में है, गोरे हैं काली हैं, जिस भी हाल में है, माँ आपको बहुत प्यार करती है. कई बार हम क्या करते हैं कि शायद बहन भाई है या अड़ोस पड़ोस में बच्चा है, भाई वो तो इतना सुंदर है, बहुत प्यारा है, उसकी माँ उसको ज्यादा प्यार करती है, मैं थोड़ा सा ब्लैक ग्लो में हूँ, मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती. ऐसा नहीं होता. माँ हर हाल में बच्चे को उतना ही चाहती है, चाहे वो बच्चा गोरा है, चाहे काला है, चाहे किसी भी लेवल से. तो रोजर स्कंक के फ्रेंड्स उसके करीब नहीं जाते. और वो क्या होता है, वो जो एक ट्रैक्टर है उसका एक फ्रेंड है, जो है इसका ओल्ड फ्रेंड, वो है वाइज आउल. एक ओल्ड वाइज आउल है, वो उसके पास चला जाता है, जाके कहता है कि मेरी ये प्रॉब्लम. कहते तो ऐसे करे, खेत पे जा, वहां विजार्ड है, विजार्ड से मिलो. वो विजार्ड से मिलता है और विजार्ड जो है उसकी बैड स्मेल को पूछता है कि तुझे कौन सी स्मेल चाहिए. वो कहता है मुझे रोज लाइक स्मेल चाहिए. वो चेंज कर देता है. तो जैसे वो चेंज होती है, वो रास्ते में आता है, उसके फ्रेंड्स उसको लाइक करना शुरू कर देते हैं. उसके पिताजी उस शाम को ट्रेन से बोस्टन से वापस आ रहे हैं. वो बच्चा बहुत खुश था, फ्रेंड्स के साथ खेला, इवनिंग होने लगी, डार्क, इट बिकेम डार्क एंड वेंट बैक टू हिज होम. वहां गया, ऑल ऑफ अ सडन उसकी मदर को एक स्मेल आने लगती है, क्योंकि उसकी माँ को तो वही स्मेल अच्छी लग रही थी ना कि मेरा बच्चा जैसा है अच्छा है. उसको वो स्मेल जो रोज लाइक स्मेल थी बहुत डिफरेंट लगती है. तो वो एकदम से एक्साइटेड हो जाती है उसकी मदर, किसकी, जो रोजर स्कंक है. उससे सारी कहानी पूछती है और कहती कि किसने किया ये सब. उसने कहा ऐसे ऐसे एक जो विजार्ड है वहां हिल पे है. कहती चल मैं उसकी तेरे साथ चलते हैं. तो उसने क्या किया, उसने एक मैजिक वॉन्ड से उसकी स्मेल को, बैड स्मेल को गुड वन रोज लाइक में चेंज कर दिया. वहां गई और बहुत ज्यादा एंग्री थी, उसकी मदर ने उसके सिर पर जोर से जो है स्टिक मारी. तो जैक अब बड़ी हो चुकी, नाउ शी हैज ग्रोन अप एंड शी इज 4 years old. तो वो क्या करती है, वो गुस्से हो जाती है, कहते नहीं पापा मुझे आगे से कहानी नहीं सुनानी, आपने कहानी ये सुनानी है कि विजार्ड ने मम्मी को मारा. इवन आपको पता है कि बच्चे जब समझदार हो जाते हैं तो इस लेसन से 2 मोरल वैल्यू रेजेस होती हैं. एक वो जो बच्चा अपने एक्सपीरियंस से उस कहानी के माध्यम से सीख रहा है, और एक वो जो फादर ने ये चीज सोची कि यहाँ पर मदर गलत है, तो कहीं वो बच्चा माँ से नफरत ना करने लग जाए या माँ को गलत ना समझे. तो चलिए इस लेसन के माध्यम से हम पढ़ेंगे शुड विजार्ड हिट मॉर्निंग इन द इवनिंग सेम फॉर सैटरडे नैप्स नाइट. और शाम को और शनिवार को और हर रोज की आज की तरह एक नींद के लिए जैक टोल्ड हिज डॉटर जो स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड मींस अपनी मन गढ़ंत. जैक अपनी बेटी जो को मन गढ़ंत कहानी सुनाता है. दिस कस्टम, ये परंपरा बिगिन शुरू हुई व्हेन शी वाज 2, जब वह 2 वर्ष की थी. वाज इटसेल्फ नाउ नियरली 2 years old, और अब वो लगभग 2 साल की है. एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी. तो 2 साल हो गए उसे कहानी सुनाते हुए, फादर को भी. उसका जो दिमाग है वो खाली महसूस कर रहा था. ईच न्यू स्टोरी वाज अ स्लाइट वेरिएशन, और हर एक नई कहानी में
उसे थोड़ा सा स्लाइड होता है, हल्का सा वेरिएशन होता है, परिवर्तन, और फिर बेसिक टेल। एक मूलभूत कहानी से उसे हल्का सा परिवर्तन करना था। ए स्मॉल क्रिएचर, एक छोटा प्राणी, यूजुअली नेम्ड रोजर, आमतौर पर जिसका नाम रोजर है, रोजर फिश, रोजर स्क्विरल, रोजर चिंपैंजी, had some problem, कुछ समस्या थी, and went with it to the wise old owl, और वो एक अपने बुद्धिमान बूढ़े मित्र आउल उल्लू के पास गया। The owl told him to go to the wizard, और आउल ने उसको विजार्ड के पास जाने के लिए कहा। एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड ए मैजिक स्पेल, मैजिक होता है जादुई, स्पेल होता है मंत्र। विजार्ड ने एक जादुई मंत्र जो है किया, दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, जिससे समस्या हल हो गई। डिमांडिंग इन पेमेंट ए नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रीचर हैड। अब उसने क्या किया कि उसकी वो स्मेल तो बदल देगा, लेकिन उसे बदले में काफी संख्या में पेनीज क्या होती है, करेंसी है, बहुत ज्यादा चाहिए, जितनी रोजर क्रीचर के पास थी उस। बट इन द सेम ब्रीड डायरेक्टिंग द एनिमल टू ए प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा, परंतु उसी समय उसी श्वास में उसने उस एनिमल को डायरेक्ट निर्देश दिया उस स्थान पर जहां पर उसे एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड मिल सकती थी। Then Roger was so happy, इसलिए रोजर बहुत खुश था। He played many games with other creature, उसने दूसरे creatures के साथ बहुत सारी गेम खेली। And went home to his mother, और अपनी माता के पास गया just in time to hear the train, उसी समय जब उसने गाड़ी को व्हीसल करते हुए सुना। That brought his daddy home from Boston, जो उसके पापा को बोस्टन से घर ला रही थी। जैक डिस्क्राइब देयर सपर, जैक ने जो अपने रात्रि का भोजन लिया। एंड द स्टोरी वाज ओवर, कहानी खत्म थी। वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम, और इस वर्किंग हिज वे अपने तरीके से काम लेते हुए थ्रू दिस स्कीम, और इस योजना से वाज स्पेशली फैटिगिंग ऑन सैटरडे, और वो सैटरडे को बहुत थका देने वाला था। बिकॉज जो नेवर फेल asleep in naps anymore, क्योंकि जो है वो कभी भी ज्यादा नींद की झपकी में सो नहीं पाती थी। एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम फ्यूटाइल, राइट जो अनुसंधान जो उसकी परंपरा थी, वो ये सब जानते हुए भी उसे व्यर्थ कर रही थी। द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की, नो लिटिल एनिमोर, वो ज्यादा छोटी नहीं थी। द पम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड, और जो उसके पांव थे वो बेड के नीचे आधे रास्ते तक उसको कवर करते थे। देयर बिग डबल बेड, और उनका वो बड़ा डबल बेड जो था, दैट दे लेट हर बी इन फॉर नैप्स, जिस पर वो नींद लिया करती थी। एंड शी वाज सिक, और जब है बीमार थी। हैड एट लास्ट अरेंज्ड हरसेल्फ, खुद को अपने आप को मेंटेन कर लेती थी। एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस, और उस तरीके से जो उसका मोटा चेहरा था, डीप इन पिलो, वो अपने पिलो में छुपा लेती थी। शोन इन द सनलाइट, जब सूरज की किरणें उसके घर में आती थी। शिफ्टिंग थ्रू द ड्रोन शेड्स, और नीचे गिरती हुई छाया से। It did not seem fantastic, और ये इतना बढ़िया प्रतीत नहीं होता था। That some magic would occur, कि जैसे कुछ मैजिक होता है। And she would take her nap like an infant of 2, और वो 2 वर्ष की बच्ची की तरह अपनी नींद की झपकी लेती है। ब्रदर हो बॉबी, उसका भाई आपको भी बताया था, अब वो 4 साल की है, तो उसका ब्रदर जो बॉबी है वो 2 साल का था, वो स्टोव। एंड ऑलरेडी asleep with his bottle, और वो अपनी दूध की बोतल के साथ पहले से सोया हुआ था। जैक ने कहा, Who shall the story be about today, आज किसके बारे में कहानी होनी चाहिए। रोजर, जो स्क्वीज, जो है स्क्वीज आईज, जो ने अपनी आंखें दबा ली। रोजर शट, बंद कर ली। एंड स्माइल्ड टू बी थिंकिंग, और ये मुस्कुराते हुए सोच रही थी। शी वाज थिंकिंग, जो वह सोच रही थी। हर आईज ओपन, उसकी आंखें खुली। हर मदर्स ब्लू स्कंक, शी सेड फर्मली, उसने बड़ी दृढ़ता से कहा, उसकी मदर ने बड़ी दृढ़ता से कहा, स्कंक ए न्यू एनिमल, एक नया पशु। दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक एट नर्सरी स्कूल, वो नर्सरी स्कूल में स्कंक के बारे में बात किया करते थे। हैविंग ए फ्रेश हीरो, और एक बहुत ही नया फ्रेश हीरो, मोमेंटरी, पल भर के लिए। स्टेड बैक टू क्रिएटिव एंथुसिज्म, स्टेड बैक प्रेरित किया, और उसे एक क्रिएटिव एंथुसिज्म, एक क्रिएटिव मींस जो एक रचनात्मक हौसले के लिए वापस प्रेरित किया। ऑल राइट ही सेड, उसने कहा सब ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम इन द डीप डार्क वुड्स, एक गहरे काले जंगल में एक बार की बात है। देयर वाज अ टीनी लिटिल क्रीचर बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक, एक छोटा सा प्राणी रोजर स्कंक के नाम से जाना जाता था। एंड स्मेल्ड वेरी बैड, और उसकी बहुत ही बुरी स्मेल उसमें से आती थी। यस जो ने कहा, हाँ, ही स्मेल्ड सो बैड, वो इतनी बुरी स्मेल करता था। दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुड लैंड क्रीचर्स, उस जंगल के जो दूसरे प्राणी थे, वुड प्ले विद हिम, उसके साथ कोई भी नहीं खेलता था। सो लुक्ड एट हिम सोलमली, और जो लुक्ड एट हिम सोलमली मींस गंभीरता से उस पर देखा। She hadn't foreseen this, उसने पहले ऐसे कभी नहीं देखा था। Whenever he would go out to play, जब कभी भी वह खेलने के लिए बाहर जाता। जैक continued with
with jest. Jest means प्रोत्साहन, enthusiasm, courage के साथ उसने कहना जारी रखा. Would go out to play, वो खेलने बाहर जाता. Jack continued with jest, remembering certain humiliations अपमान of his own childhood. अपने बचपन में उसे निश्चित रूप से कुछ अपमानित चीजें याद आती. All of the other tiny animals would cry. और जो दूसरे छोटे एनिमल थे वो चिल्लाते. उफ, here comes Roger stinky skunk. यहाँ पर एक बुरी गंदी स्मेल छोड़ने वाला रोजर स्कंक है. And they would run away, भाग जाते. And Roger skunk would stand there all alone. और रोजर स्कंक वहाँ पर अकेला रह जाता. Two little round tears would fall from his eyes. और दो गोल घूमते हुए आंसू जो है उसकी आंखों से गिरते. The corner of Joe's mouth drooped down. Drooped down means नीचे लटक जाना. The corners of Joe's mouth, और जो के मुंह का एक हिस्सा जो था वो परेशानी में नीचे लटक गया. And her lower lip bent forward, और उसकी होंठ भी नीचे की तरफ आगे आ गया. As he traced with a forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tears. रोजर स्कंक के जो टीयर्स का समय था उसकी नोज की एक तरफ पहले अपनी वो उंगलियों से उस ट्रेस को साफ करता था. Wouldn't he see loud? क्या वह ऑल से नहीं मिला होगा? She asked in a high and faintly ruffled voice. उसने ऊंची और मध्यम बेकार सी आवाज में कहा. Sitting on the bed beside her, और उसकी एक तरफ बेड पर बैठते हुए Jack felt the cover stuck as her legs switched tensely. Tug means जोर से खींचना. जैक ने कवर से उसको अपनी टांगें जो है परेशानी में एक जोर से खींचते हुए पाया. He was pleased with this moment, और ये इस अक्षर बहुत खुश था. He was telling her something true, कि वह उसे कुछ सच बता रहा था. Something she must know, कुछ जरूरी जो उसे जानना चाहिए. And no wish to hurry on, और कोई जल्दी नहीं उसे इच्छा नहीं उसकी जल्दी करने की. But downstairs से chairs scraped, और downstairs सीढ़ियों के नीचे एक कुर्सी के घसीटने की आवाज. Scraped means घसीटने की आवाज. And he realized, उसे एहसास हुआ he must get down to help clear the name of the wife of Jack. जैक की पत्नी जो वो चाहता था कि उसकी मदद करे. पेंट द लिविंग रूम वुड वर्क, और वुड वर्क जो उनके रहने का कमरा था उस वुड वर्क एक लकड़ी का काम जो किया हुआ था उसके ऊपर पेंट कर रही थी, और उसकी मदद करने के लिए उसको एक एहसास, उसको एक रियलाइज होता था. When he walked along very sadly, ठीक है, वो एक साथ बहुत उदासी से चला. And came to a very big tree, और एक बहुत बड़ी वृक्ष के पास आया. And in the tip top of the tree के शिखर पर was an enormous wise old owl. वहां पर एक विशाल बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू था. गुड, ठीक है. तो स्टूडेंट, ये कहानी हमारा पार्ट 1 जो है आपकी जो लेसन है मिस्टास का, शुड विजार्ड हिट मॉमी. रेस्ट लेसन I will send you in the next video. Till then, thank you.